اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا لیسن، آج کا سبق جو ہے، کا درس جو ہے انتہائی ضروری ہے. وہ یہ طلباء کے لیے بھی ہے اور جو انفارملی یہ پڑھنا چاہتے ہیں، عربک سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ آج کا درس جو ہے وہ ضمائر کے متعلق ہے. ضمائر پروناؤنز، اور قرآن میں بھی یہ الفاظ، یہ ضمائر کے الفاظ بہت دفعہ آ چکے ہیں. ضمیر، ضمیر، pronoun. Pronoun, as you know, that word which is used in place of noun is called a pronoun. اسی طریقے سے ضمیر جو ہے، اسم الضمیر، ہم نے ضمیر جو ہے وہ اسم کی جگہ استعمال کیا جانے والا جو لفظ ہے اس کو ہم ضمیر کہتے ہیں. اب قطعی نظر اس کے کہ جس کی قسمیں کتنی ہیں وغیرہ کیا ہیں، یا اس کو ہائر اس طرح پر جانے سے پہلے جو ابتدائی طور ہے وہ آج میں آپ کو بتاؤں گا. بڑا ہی مفید بھی ہے اور بڑا ہی دلچسپ بھی سبق ہے، درس بھی ہے. تو آج ہم کہیں گے الضمائر المنفصلہ. الضمائر المنفصلہ. اس سے پہلے کہ آپ کو یہ مشکل نہ آ جائے، میں جلدی سے آپ کو بتاتا ہوں ضمائر منفصلہ اور ضمائر متصلہ کی تھوڑی سی فرق. وہ میں بعد میں اسی طریقے سے واضح کروں گا، لیکن یہاں تھوڑا مجھے واضح کرنا پڑے گا. وہ یہ کہ میں کہتا ہوں، مثلا میں نے اس سے پہلے آپ کو کہا تھا قلم. اگر میں کہوں گا قلمی تو ہو گیا میرا قلم. یہ یا جو ہے، یا اس طرح سے قلم کا، آپ کا قلم، قلم اس کا قلم. یہ یا جو ہے، یہ کیف جو ہے، یہ ہو جو ہے، یہ ہم نے ضمیر استعمال کیا، لیکن یہ ضمائر متصلہ ہے، اسی کے ساتھ ملا ہوا ہے. اس کے برعکس ہم نے پہلے سبق میں بھی پڑھا ہے، یہ ضمائر جو ہے یہ ضمائر منفصلہ ہے، دور ہے. مثلا میں کہوں گا ہوا رجلن، ہوا ولدن، وہ ایک لڑکا ہے، وہ ایک آدمی ہے. ہوا مدرسن، وہ ایک استاد ہے. تو ہوا اور مدرسن، اس کے بیچ میں گیپ ہے، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں، اس ضمیر کو کہتے ہیں ضمیر منفصل ہے، کیونکہ اس کے بیچ میں گیپ ہے. یہاں قلم کا یا قلمی یا قلم ہو اس کا قلم، اس قلم اور ہو کے بیچ میں کوئی گیپ نہیں، بلکہ ملا ہوا ہے، متصل ہے. متصل عربی میں کہتے ہیں متصل، میم تا صاد لام. متصل مینز نزدیک، اتصال کیا ہوا، نزدیک ہے، اس کے ساتھ ملا ہوا. اس کے برعکس جو ہے منفصلہ. منفصلہ اس میں یہ فصل کا کام، اس کا وہ معنی دیتا ہے. منفصلہ، منفصلتون، منفصلتون 11th کا لیسن ہے، سبوں کے لیے ضروری ہے. منفصلتون، منفصلہ یعنی جس پہ بیچ میں گیپ ہو. مثلا میں نے بھی آپ کو کہا ہوا رجلن، وہ ایک آدمی ہے. ہوا اور رجلن کے بیچ میں ایک گیپ ہے، یہ الگ لفظ ہے، یہ الگ لفظ ہے، اس کے بیچ میں گیپ ہے. تو اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں ضمیر منفصلہ. اب ہم آ جائیں گے، یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. مثلا میں کہوں گا ہوا، میں نے ایک چارٹ بھی بنایا ہے، یہ 6 غائب کے سیگے، یہ مخاطب کے سیگے، یہ متکلم کے سیگے. غائب مینز تھرڈ پرسن، غائب مینز غائب تھرڈ پرسن. اسی طریقے سے غائب جو ہے یہ ہے تھرڈ پرسن. مخاطب یہ جو کیا ہے، یہ ہے سیکنڈ پرسن. اور متکلم فرسٹ پرسن. یہاں میں نے پہلے تھرڈ پرسن لایا، کیونکہ عربی میں پہلے ہم غائب لاتے ہیں، جس کے ساتھ ہم بات نہیں کرتے ہیں. متکلم کلام کرنے والا، فرسٹ پرسن، آئی، وی، ہم جو ہیں یا میں جو ہوں، یہ متکلم ہے، فرسٹ پرسن. تم ایک، تم دو، تم سب، آپ سب، یہ آپ جو ہے یہ ہم سیکنڈ پرسن میں استعمال کرتے ہیں، مخاطب. اس کے بعد ہے غائب تھرڈ پرسن. غائب
यानी जो जिसके साथ हम बात नहीं करते हैं। अब यहाँ एक थोड़ी सी मैं आपको तवज्जो करूंगा, ये तफसील बताऊंगा। अगर मैं आपके साथ बात करता हूं, मैं फर्स्ट पर्सन, आप सेकंड पर्सन, और जो बाकी चीजें हैं ये तमाम की तमाम थर्ड पर्सन है। चाहे कोई लड़का है यहाँ, चाहे कोई लड़की है, चाहे कोई चीज है, ये थर्ड पर्सन में आ जाएगा, ये फर्स्ट पर्सन में नहीं आएगा। मसलन यहाँ एक बच्ची है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं कहूंगा अन, आपको कहूंगा अंत, लेकिन जो जिसके साथ मैं बात नहीं करता हूं वो हो गया हिया, वो एक लड़की, या हुआ वो एक लड़का। मतलब यह है कि अगर वो यहां मौजूद भी है लेकिन उसके साथ मैं बात नहीं करता हूं, वो गायब माना जाएगा। कश्मीरी में कशीर पचिस गायब तमिस युस न अथस आस के, मगर यहां ऐसी बात नहीं है। यहां मतलब यह है, यहां मतलब गायब का मतलब क्या है? गायब का मतलब यह है कि जो जिसके साथ आप बात नहीं करते हैं, जो आप बात करते हैं, थोड़े इधर रहो कहीं छतरी कहीं, गायब मैं जो हूं, मैं मुतकल्लिम फर्स्ट पर्सन, आप सेकंड पर्सन, और जो जिसके साथ हम बात ना करें वो थर्ड पर्सन। हुआ वो एक मर्द, हुमा वो दो मर्द, हुम वो सब मर्द, हिया वो एक औरत, हुमा वो दो औरतें, हुन्ना वो सब औरतें। क्या मैंने कहा? हुआ मीन्स वो एक क्या है? मुज़क्कर, मर्द होगा, लड़का होगा, लड़की होगी। हुमा वो दो मर्द, हुम वो सब मर्द, हिया वो एक औरत, या हम कहेंगे वो एक मुअन्नस, हुमा वो दो औरतें, हुन्ना वो सब औरतें। तो अगर आप देखेंगे कुरान में ये तमाम ज़माइर इस्तेमाल हो चुके हैं, होते हैं, लिहाजा इनको हमें समझना बहुत जरूरी है कुरान समझने के लिए। हुआ वो एक मर्द, हुमा वो दो मर्द, हुम वो सब मर्द। अब हुआ हुमा हुम आसानी के साथ रखेगा, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्न, हिया हुमा हुन्न, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्न। इस तरह याद रखेगा। हुआ, जब आप ऐसे खड़े हो जाएंगे तो दाएं की तरफ हाथ रहो, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्न, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्न। हुआ वो एक मर्द, हुमा वो दो मर्द, हुम वो सब मर्द, हिया वो एक औरत, हुमा वो दो औरतें, हुन्न वो सब औरतें। अब यहां आपको क्वेश्चन आ जाएगा, जहन में आ जाएगा, यहां भी इसने हुमा कहा, यहां भी उसने हुमा कहा। हाँ बिल्कुल, तस्निया मुज़क्कर जो है, ये पहले तीन मुज़क्कर है, यहां मैंने लिखा है, ये लाइन जो है ये इन ऊपर वाले मुज़क्कर है, नीचे वाले मुअन्नस। हुआ हुमा हुम ये तीन मुज़क्कर, पहला मुफरद वाहिद, तस्निया दो, जमा सब है, मुफरद तस्निया जमा, या अल मुफरद तस्निया तो अल जमउ, अल मुफरद तस्निया तो अल जमउ। तो ये तीन मुज़क्कर, ये तीन मुअन्नस। लेकिन मैंने आपको कहा ये हुमा जो है इसके लिए भी इस्तेमाल होगा, इन दो के लिए भी इस्तेमाल होगा। इसका मतलब है कि अरबी में तस्निया जो है दोनों के लिए इस्तेमाल। यहां भी आप देखेंगे इस माजी में, अंतुमा तुम दो, अंतुमा तुम दो, तस्निया दोनों, यहां भी नहनो दो हम दो, नहनो हम दो। इसका मतलब है कि तस्निया के सेगे मुज़क्कर और मुअन्नस का एक ही है। क्या मैंने कहा? फिर एक बार कहेंगे, याद रखिए, अगर आप आज 6 ही याद करेंगे, फिर कल जो है जाते हुए, उठते हुए, बैठते हुए कहना हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्न, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्न। हो गए 6 याद आसानी के साथ। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्न, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्न। हुआ वो एक मर्द, हुमा वो दो मर्द, हुम वो सब मर्द, हिया वो एक औरत, हुमा वो दो औरतें, हुन्ना वो सब औरतें। हुन्ना लिबासुल लकुम अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कुरान में आया है। हुन्ना वो सब औरतें, यानी उन सब औरतों का ज़मीर के बाद इस्तेमाल किया गया है, हुन्ना वो सब औरतें। हुम उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, वो सब फलाह पाने वाले हैं। हुम माने वो सब है? तो इस तरीके से हुआ माने वो एक मर्द, हुमा माने वो दो, हुम माने वो सब, हुइया हुमा हुन्ना। इसके बाद जो है अब यहां की तरफ आ जाएगा, अब मुखातब की तरफ, सेकंड पर्सन, ये तो गायब ही है।
हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन ये गायब है। वो एक मर्द, वो दो मर्द, वो सब मर्द, वो एक औरत, वो दो औरतें, वो सब जिनके साथ हम बात नहीं करते हैं। आप जिनके साथ हम बात करेंगे, मैं आपके साथ बात करूं, अंत तू एक मर्द, अंतुमा तुम दो मर्द, अंतुम तुम सब मर्द, अंत अंतुमा अंतुम। आप भी हाथ खिलाए, घर में बैठे हो, देख रहे हो, वहां आप बिल्कुल हाथ उठा के, जब तक आप ये नहीं करेंगे आसानी नहीं हो जाएगी, इस तरह से आसानी हो जाएगा। अंत अंतुमा अंतुम, पहला एक उंगली उठाना, फिर दो उठाना, फिर सब उठाना। अंत अंतुमा अंतुम, अंत तो एक मर्द, अंतुमा तुम दो मर्द, अंतुम तुम सब मर्द, अंतुम तालमून आप सब जानते हो। अंतुम कुरान में आया है, कुरान में आया, अंत भी आया। जब फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा वह अंत फालता फालता कल फालता, आपने वो काम किया जो आपने किया। अंत अंत तूने, अंत तो एक मर्द ने, तो दो के लिए अंतुमा तुम दो ने, अंतुम तुम सब ने। फिर अंति तो एक औरत, थोड़ा नीचे की तरफ, अंति अंतुमा अंतुन्न, अंति थोड़ा फोकस कीजिएगा, ये मैं कहूंगा, शाबाश। अंत अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुन्न, अंत अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुन्न, हो गए फिर 6। अंत अंतुमा अंतुम, अंत्य अंतुमा अंतुन्न, हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्न, अंत अंतुमा अंतुम, अंत्य अंतुमा अंतुन्न तुम सब औरत, अंत्य तो एक औरत, अंतुमा तुम दो औरतें, अंतुन्न तुम सब औरतें। फिर लास्ट में, इस असल में ये 6 के बदले 2 ही हैं। आप देखना जरा, अना अना मने मैं, अना मने अब हम 2 होंगे यहाँ, हम कहेंगे नहनो हम 2, फिर सब होंगे, हम कहेंगे नहनो, अना नहनो नहनो, अना नहनो 2, नहनो सब, अना मैं एक, नहनो हम 2, शाबाश, नहनो हम सब, ये मुज़क्कर के लिए, मैं एक मर्द, हम 2 मर्द, हम सब मर्द। अब औरतें भी वही कहेंगे, अना मैं एक औरत, नहनो हम 2 औरतें, नहनो हम सब औरतें, अना नहनो नहनो, अना नहनो नहनो। अगर आप देखेंगे 2 के लिए भी नहनो आ गया, जमा सब के लिए भी नहनो आ गया, 2 मर्द 2 सब हम मर्द, नहनो 2 औरतें, नहनो सब औरतें। इन 4 के बदले इन्हें नहनो आ गया, नहनो आ गया, नहनो आ गया, नहनो आ गया। इन 4 के बदले एक ही सेगा है नहनो, इन 4 के बदले एक ही। अब अना भी 2 बार है, अना मैं मर्द के लिए भी इस्तेमाल, तो मुज़क्कर के लिए भी और औरत के भी, इन 2 के लिए ज़मीर इस्तेमाल हुआ अना, हो गया अना और नहनो। इन 6 के बदले असल में यही 2 है, कौन कौन, अना और नहनो, अना और अना नहनो, अना नहनो। हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्न, अंत अंतुमा अंतुम, अंते अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनो नहनो, अना नहनो नहनो, अना नहनो नहनो, अना नहनो नहनो। अना माने मैं, अना मुदर्रिसुन मैं एक मुदर्रिस हूं, नहनो मुदर्रिसून हम सब असातिज़ा हैं, हैं? अच्छा, अना मैं, नहनो 2 भी सब के लिए भी इस्तेमाल होगा, मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी। यहां हमने देखा एक बात ये कि तस्निया के लिए मुज़क्कर और मुअन्नस में एक ही सेगा आता है, गायब में भी हुमात और हुमा, और मुखातब में अंतुमा और अंतुमा, तुम 2 मर्द और तुम 2 औरतें। और इस मुतकल्लिम में फर्स्ट पर्सन में नहनो और नहनो, हम 2 एक, इसका मतलब है कि ये तस्नीय के 3 सेगे जो मुज़क्कर हैं के हैं, वही तस्नीय के 3 सेगे मुअन्नस के भी हैं। आ गया ये भी, इससे आसानी हो जाएगी। यहां हुमा याद रहा, यहां भी हुमा, अंतुमा अंतुमा, नहनु नहनु। और फिर हमने पढ़ा कि जो मुतकल्लिम के 6 सेगे हैं उनमें नहनु सिर्फ तस्निया के लिए नहीं, तस्निया के लिए भी, जमा के लिए भी, मुज़क्कर के लिए भी और मुअन्नस के लिए भी, चारों के लिए नहनु आता है। नहनु माने हम सब। तो क्या हमने, तो फिर एक बार मैं कहता हूं
کہ تھرڈ پرسن غائب، یہ تین غائب کے، یہ تین مخاطب کے جن کے ساتھ میں بات کرتا ہوں سیکنڈ پرسن، اور یہ 6 جو ہیں یہ متکلم کے، لیکن ہیں یہ 2 ہی، انا اور نحنو، انا اور نحنو۔ پھر ایک بار کہتا ہوں ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحنو نحنو، انا نحنو نحنو۔ بس یہی آج کن کے متعلق ضمائر منفصلہ کے متعلق بہت ہی اس کو گردان کیجیے گا، اٹھتے بیٹھتے جب تک یاد ہو جائے 14۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔